माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन का भी हम स्वागत करते हैं। आज का दिन आरबीआई के लिए एक गर्व का और एक ऐतिहासिक दिन है, जब आरबीआई के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रभामंडल से दैदीप्यमान हो गया है। अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Maharashtra Shri Vidyasagar ji, Honorable Finance Minister Shri Arun Jaitley, and Honorable Chief Minister of Maharashtra Shri Fadnavis ji. आज भारतीय रिजर्व बैंक ने 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आदमी के जीवन में 80 वर्ष काफ़ी लंबा समय होता है। दक्षिण भारत में 80 वर्ष पूरे करने पर सदाभिषेकम नाम से एक समारोह मनाया जाता है। तो एक तरह से आज हम भारतीय रिजर्व बैंक का सदाभिषेकम मना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब रिजर्व बैंक की जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं। आज तो केवल हमारे सफर के शुरुआत की समाप्ति है। The Reserve Bank was set up in 1935 when India was under British rule. But the RBI was certainly not a British institution and has been working right from the outset for Indian economic interests. It has also nurtured Indian talent. In 1943, C.D. Deshmukh, one of India's finest financial minds, was appointed as the first Indian governor of the Reserve Bank. Among the problems he had to confront was how to deal respectfully but firmly with the debts the colonial power Britain had accumulated to India during World War II. Over the years, the Reserve Bank has been blessed with a number of such great leaders, a reflection also of the importance the government places in having a strong central bank. The list of past governors and deputy governors reads like a who's who of the Indian economic establishment, with governors like Benegal Rama Rao, M. Narasimham, Dr. I.G. Patel, Dr. Manmohan Singh, Dr. Rangarajan, Dr. Bimal Jalan, Dr. Y.V. Reddy, and Dr. Subba Rao, ably assisted by deputy governors such as S.S. Tarapur, Vepa Kamesan, Dr. Rakesh Mohan, K. Udeshi, Shamla Gopinath, and Usha Thorat. The RBI's board has also been superb, with people like Sir Purushottam Das Thakur Das and Yezdi Maligam, two of the longest-serving board members of the RBI, guiding it. Interestingly, many of the governors were from the administrative services, with only one, M. Narasimham, from the RBI itself. Nevertheless, all understood that the Reserve Bank's role is to safeguard the monetary and financial stability of the country, even while working towards its financial development. There's always been a constructive dialogue between the government and the bank, informed by their respective time horizons and attitudes towards risk. And history records that successive governments have invariably appreciated the wisdom of the Reserve Bank's counsel. Over the years, the Reserve Bank has addressed many concerns. Inflation control has been foremost, and the Reserve Bank has done an admirable job over time, despite the price pressures created by food shortages, oil prices, and wars. Financial sector development has been another concern. The RBI's role has included setting up new institutions, encouraging the use of technology, developing markets, and expanding financial inclusion. In the coming year, for example, we will have many new players in the banking ecosystem, such as payment banks, small finance banks, and possibly a postal bank, competing with existing universal banks, regional rural banks, cooperative banks,
and a variety of non-bank finance companies. The use of technology has also expanded from the days when accounts were maintained manually in ledgers and unions called for strikes at the very mention of the word computer. Today, some banks allow customers to do all their banking transactions on a mobile phone without entering a branch or touching a pen. The RBI's intent is to create an ownership-neutral, institution-neutral, technology-agnostic, level competitive playing field. For example, technologies enabling touch-and-go payments will find use, even as banks focus on acquiring and analyzing information and reducing transaction costs as they compete to extend financial services to all. The RBI's state-of-the-art payment system will support technology even as RBI strengthens its cyber supervision and cyber security. We also need deep markets to absorb risks that stay too often in banks or in corporations. Here too, the RBI's record has been strong. Though many developing country governments are forced to borrow only in foreign currency, the Reserve Bank has fostered a liquid rupee government bond market where the government today is able to contemplate issuing 40-year bonds. The rupee is truly becoming international as foreign institutions queue up to issue rupee-denominated bonds. New products supported by the RBI, such as the recently introduced interest rate futures contract, are doing a roaring business on exchanges. Our tasks are far from over. The nation has enormous financing needs in infrastructure, and far too many of our banks already have too much exposure. Big corporate infrastructure players have also taken too much debt. The required national push to finance infrastructure should not override financial stability, which is key to national security. So going forward, we need to develop new sources of risk capital so that our infrastructure needs can be financed with moderate amounts of debt, even as we help the system deleverage. Perhaps, of course, the country's most important financial challenge is the theme of the conference today, to bring financial services to every doorstep and to every small enterprise. The poor are still too far away from or too uncomfortable stepping into bank branches. With government initiatives like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Mudra Bank, as well as new technologies, new institutions, and new processes such as direct benefits transfers, I'm confident that our country can empower the poor and the small with both choice and opportunities. The RBI, in turn, has to ensure consumer protection and greater consumer literacy. Finally, if the Reserve Bank is respected today, it is because of the many thousands who have worked over the years for the bank with capability and dedication, and many of you are here today. Let me recognize too, Rani Durve, a DGM in the Bhopal office, has created numerous films, books, and street plays on themes such as fictitious emails and excessive interest rates, so as to educate and inform the public. Nirmal Patnaik, an AGM in the Department of Information Technology, enabled the Pan-India electronic transfer of funds for government departments through the electronic payment system, thus overnight making the government one of the largest users of the national electronic payment system. Both have gone beyond the call of duty, but they're only representative of many others in the bank. The RBI is also respected for its integrity. It's a matter of great pride for me today that when someone enters our building to persuade us to change a regulation, they come armed not with money, but with arguments about what is right. Let me conclude. Strong national institutions are hard to build. Therefore, existing ones should be nurtured from the outside and constantly rejuvenated from the inside, for there are precious few of them. In the 81st year of this great institution, let us rededicate it to helping the nation secure prosperity and economic opportunity for all. Thank you for joining us in this celebration. धन्यवाद डॉक्टर रघुराम राजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश के आर्थिक ढांचे को तराशने में अहम भूमिका निभाई है। अब तो आरबीआई की भूमिका और भी ज़्यादा अहम हो गई है और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि खुद सरकार
और बैंकिंग सेक्टर दोनों ही हर गरीब, हर ज़रूरतमंद को वित्तीय सेवाओं के लाभों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्प हैं। आइए फाइनेंशियल इंक्लूजन की यात्रा पर हम आपको ले चलते हैं इस फिल्म के द्वारा। आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ। लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए, और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा कर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करें। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और पीएमजेडीवाई को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत हो। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा।
बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें। फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते में प्रधानमंत्री जनधन योजना एक प्रकाश स्तंभ साबित हुई है। आगे का रास्ता मंजिल तक कैसे पहुंचेगा, ये भी आपने इस फिल्म में देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और मिशन की बैंकिंग सर्विसेज को जन जन तक ले जाना है, इसको माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली अपने पैशन और अपनी कर्मठता से साकार कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर आपके मार्गदर्शन और दक्ष कार्यशैली से लाभान्वित हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी, हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया हमें संबोधित करें। The Honorable Prime Minister, His Excellency the Governor of Maharashtra, the Honorable Chief Minister, the Governor of the Reserve Bank, Dr. Rajan, ladies and gentlemen. It's indeed a privilege to be associated with this landmark occasion in the history of the Reserve Bank. 80 years in the life of an institution like the Reserve Bank has brought in an inbuilt institutional maturity and experience in the institution. Starting from 1935 till today, a very large part of India's sovereign functions rest on the shoulders of the Reserve Bank. From management of India's monetary policy, inflation management, management of the rates itself, as a regulator of the banking system, management of the public debt. These are amongst the functions with which Reserve Bank has undertaken this 80-year journey and performed this journey in a commendable manner. Let me take this opportunity to compliment and congratulate the Governor, Dr. Rajan, the entire team of the Reserve Bank, and all his very eminent predecessors that he named, amongst others, and their team workers who succeeded in establishing this great institution. It is the professionalism and the ability of the central bank which has indeed served this country and served it well. We are indeed proud of its performance. I'm extremely glad that you've taken up financial inclusion as an important theme for today's function at the film that you just showed demonstrated. The effort of the government has been, through various policy announcements in the last 10 years, to have a concerted, all-around approach as far as the development of the country is concerned. If I were to put in a nutshell, we've opened our doors for investment. We are trying to ensure that as many people, both within and outside, invest in this country. We are trying to restore the credibility of both the Indian economy and the decision-making process of the Indian economy. We are trying to ease various processes and procedures. I need not repeat every step that we've taken. We are trying to rationalize our taxation structures, make them more and more non-adversarial, and make some landmark changes, both in the indirect tax system as also in the direct tax system. Some of these ideas were
outlined in the budget presented recently. In the coming days, I am looking forward anxiously to one of the most important constitutional amendments with regard to the goods and services tax being cleared by Indian Parliament. We are trying to ensure that sectors like manufacturing, agriculture, infrastructure are amongst those which now start benefiting from the decision-making process. But there's always a danger that some may get left out. And that is why the advantage of this entire change must also go to them. The Mudra initiative, which is going to be unveiled by the Honorable Prime Minister on the 8th of April, is going to be taken up in a mission mold, almost similar to the manner in which the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was taken up, so that the unfunded in this country can also be funded by that initiative. The Jan Dhan campaign has been a tremendous success. Millions and millions of people have been joined to the banking system. The entire credit for this almost goes to the various banking institutions of India and its employees. They've literally brought in a significant change where they treated an individual unit and therefore approached almost every family in this country. And more than 99% of the families that they approached agreed to be joined to the banking system. Some percentage of them also put in their money into these accounts. The ongoing challenge before the government is, and that's a challenge also for the banking system, that these accounts now become operational. And therefore, from the old schemes of the government, from the direct benefit transfers which have started with regard to the LPG subsidies from the 1st of January this year, monies are now being transferred to the bank account. Some are also being transferred to these bank accounts which have operationalized. The next phase of the challenge is to provide a certain amount of social security to the holders of these accounts. And therefore, the next initiative in terms of an accident insurance, in terms of a life insurance, in terms of attractive pension schemes, to these underprivileged sections, with the support of public exchequer and the banking system, as also other insurance institutions, has been opened out to these people. Hopefully, we are working on modified healthcare schemes. Test of these 80 years has still a very important and a very powerful role to play in this. The RBI on various issues has always been in very constructive dialogue with the government, and I have not the least doubt that as the Indian economy picks up further to serve every section of society, we may yet see another best in the performance of the RBI. I wish the RBI and all its staff members the very best on this occasion. Thank you. धन्यवाद माननीय श्री अरुण जेटली. The concise history of Reserve Bank of India 1935 to 1981. 1935 जब से RBI की स्थापना हुई है तब से लेकर 1981 तक के इतिहास को अपने आप में समेटे है ये किताब. माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुनय करते हैं कि कृपया इस किताब का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें. इसके लिए माननीय अनावर पट्टिका पर लगी डोर को आपको खींचना होगा और हमारे मंच पर जो विराजमान गणमान्य अतिथिगण हैं, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय गवर्नर महाराष्ट्र, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और रिजर्व बैंक के गवर्नर, आपसे भी निवेदन है इसमें शामिल हों. विभिन्न मॉनिटरी और फाइनेंशियल मुद्दों पर बारीकी से अवलोकन करती है ये बैंक
की कार्यप्रणाली का इतिहास क्या था, इस पर भी ये किताब नजर डालती है। इस किताब की लेखिका हैं श्रीमती मीना हेमचंद्र। प्रिंसिपल गरीबों और जन जन के लिए संवेदनशीलता ही तो है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अब देश के विकास का प्रमुख हिस्सा हो गया है। माननीय, आपकी इस पहल ने बैंकिंग फ्रेटर्निटी में उत्साह और प्रेरणा का संचार तो किया ही है, वित्तीय सेवाओं के लाभों से जुड़कर गरीबों को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, कुछ कर गुजरने का हौसला भी मिला है। ये इस देश का अभूतपूर्व सौभाग्य और एक नई सुबह का उद्घोष है। माननीय, हमारी आपसे विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया आज के इस दिन हमारा दिशा निर्देशन करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, आरबीआई के गवर्नर श्रीमान रघुराम राजन जी और वित्त विश्व के सभी महानुभाव, रिजर्व बैंक की 80 साल की यात्रा पर हम लोग आज मिले हैं। हमारे देश में 80 साल का एक विशेष महत्व रहता है। दुनिया में 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, उस हिसाब से अवसरों को याद किया जाता है। लेकिन शायद भारत इकलौता ऐसा देश है कि जिसमें 80 साल को भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। और उसका कारण यह है कि हमारे इसको सहस्त्र चंद्र दर्शन के रूप में माना जाता है। जब 80 साल होते हैं तब फुल मून 1000 बार देखने का अवसर मिलता है। तो रिजर्व बैंक को एक 1000 पूर्ण चंद्र के शीतलता के आशीर्वाद मिले हैं और उस अर्थ में इस अवसर का एक विशेष महत्व होता है। मैं ज्यादा इस दुनिया का इंसान नहीं हूं, इसलिए जो भाषण आपने सुने अभी वो मेरे सॉफ्टवेयर के विषय नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो सॉफ्टवेयर दिया है उससे ये सब बाहर है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इन सब चीजों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हर 2 महीने में एक बार रघुराम से मिलना होता है और मैं देखता हूं वो 3 या 4 स्लाइड लेके आते हैं और मुझे इतना परफेक्टली समझाते हैं, यानी शायद वो बेस्ट टीचर भी रहे होंगे। कोई मुझे क्वेश्चन नहीं करना पड़ा, मुझे बिल्कुल समझ आता है हाँ ये कहना चाहते हैं और इसका मतलब ये होता है, इसका ये परिणाम होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि शायद सरकार की और आरबीआई की सोच में बहुत साम्यता होगी, तब ये संभव होता होगा। और मैं मानता हूं ये बहुत आवश्यक होता है। और उस विषय में मैं एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपना संतोष व्यक्त करता हूं। आरबीआई अपनी जो भूमिका अदा कर रहा है, मैं रघुराम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 80 साल की यात्रा में श्रीमान देशमुख और उनकी टीम से लेकर के अब तक
जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, कई लोगों ने अपना जवानी इस काम के लिए खपाई होगी, तब जाकर के एक इंस्टीट्यूशन इस ऊंचाई पर पहुंचती है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी अपने आप को ढाला होगा। बदले हुए वैश्विक परिसर में आरबीआई के रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए यहां भी काफी जद्दोजहद हुई होगी। इस समय पर जो नेतृत्व दिया होगा, वे सब भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। और मेरी तरफ से अब तक जिन जिन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है, उन सबको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और देशवासियों की तरफ से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपने फैमिली डॉक्टर को टाइम देता हो या न देता हो, लेकिन बैंकर को अवश्य टाइम देता है। उसके जितने लंच डिनर होते होंगे उसमें ज्यादातर बैंकर के साथ होते होंगे। अमीर को भी जहां जाना पड़ता है मांगने के लिए, वो जगह है बैंक। तो मैं भी आज यहां मांगने के लिए आया हूं। और मैं भी मेरे परिवार के लिए मांगने के लिए आया हूं। और मेरा परिवार है जिनके बीच में पैदा हुआ, जिनके बीच में पला बढ़ा, वो गरीब परिवार है। गरीबों के बीच में मैं पला बढ़ा हूं। मेरा बचपन वहां गया है। मैंने जिंदगी की उन चीजों को देखा है। और अब प्रधानमंत्री बना हूं तो ये मेरा परिवार इतना विस्तृत हो गया है कि एक प्रकार से बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीने वाले सारे गरीब, एक प्रकार से मार्जिनल फार्मर, एक प्रकार से दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और उस परिवार के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं आज वित्त विश्व के पास मैं कुछ मांगने आया हूं। और जब आप 80 साल मना रहे हो तो जरूर किसी को निराश नहीं करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आरबीआई के सभी नीति निर्धारकों को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपना विषय के रूप में पसंद किया है। और 80 साल के समय इस अवसर को मना रहे हैं। इसका मतलब आप जब 100 साल के होंगे और जब शताब्दी मनाते होंगे, वो शताब्दी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के कहां पर पहुंची होगी, मैं समझता हूं उसके टारगेट भी सेट करोगे तो 20 साल के अंदर भारत की बैंकिंग व्यवस्था गरीब के दरवाजे तक किस प्रकार से काम कर रही है, इसका एक खाका तैयार हो जाएगा। और जब 20 साल का पड़ाव आप सोचते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा। 2019 महात्मा गांधी को 150 हो रहे हैं। 2022 देश की आजादी को 75 साल हो रहे हैं। 2025 आपको 90 हो रहे हैं। और 2035 ये आपके 100 होंगे। ये 4 महत्वपूर्ण पड़ाव मान करके हम अपना एक मैप तैयार कर सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में जाने के लिए ये हमारा टारगेट ग्रुप होगा, ये हमारा रोड मैप होगा और हम ये अचीव करके रहेंगे। और पूरे भारत में चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर का बैंकिंग हो या माइक्रो फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस हो या हमारी नेशनलाइज्ड बैंक्स हो या रिजर्व बैंक स्वयं हो, हम सब एक ही दिशा में सोचें। ऐसा हो सकता है क्या? अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना सफल न होती, मैं नहीं मानता हूं
कि वित्त व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसकी इतनी ताकत का अंदाज आता। बड़ा ही उपेक्षित वर्ग रहा। आजादी के इतने साल के बावजूद भी 50% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है बैंकिंग व्यवस्था, उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे। मैं सभी बैंकों के छोटे मोटे हर व्यक्ति को आज बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया और आज देश ने अचीव किया है। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नया विश्वास पैदा किया है और एक नई दिशा का संकेत दिया है। दूसरी तरफ, जब तक हम गरीब की तरफ देखने का अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, एक समाज के आर्थिक ढांचे के रूप में, तब तक हम शायद प्रोजेक्ट लेंगे, परिणाम लेंगे, लेकिन जब तक वो कन्विक्शन नहीं बनता है, आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं बनता है, हम शायद परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और आर्टिकल ऑफ फेथ बनने के पीछे या कन्विक्शन बनने के लिए कुछ घटनाएं होती हैं जो हमारी सोच को बदलती है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता उस बात की ओर संकेत करती है। सरकार ने तो तैयार किया था, आरबीआई ने माना था, बैंकों ने मदद की थी कि हम जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलेंगे। और आप देखिए, गरीब की अमीरी देखने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। बैंक वालों ने अमीरों की गरीबी बहुत बार देखी होगी। समय पर पैसे जमा न करने वाले कई अमीर उन्होंने देखे होंगे। रिस्क लेने वाले बैंक मैनेजर भी परेशान रहते होंगे, यार मार्च एंडिंग तक नहीं हुआ तो मर जाऊंगा मैं तो आपने अमीरों की गरीबी देखी होगी, लेकिन इस जनधन की योजना से अपने गरीबों की अमीरी के देखने का सौभाग्य मिला। जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलने का कहने के बावजूद भी जो 14 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोले, उसमें 41% लोग ऐसे हैं कि जिनको लगा कि नहीं मुफ्त में नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ तो कर रखना चाहिए। और 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने जमा करवाया। 14,000 करोड़ रुपया। देश का गरीब जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के बावजूद भी 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करता है। मैं समझता हूं इससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं हो सकती। अगर इसको एक हम ताकत समझे और ये जो उनके संस्कार हैं, उनके मनोवैज्ञानिक भूमिका है, जो उनके मन के आदर्श हैं, ये भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। हमें उसको नर्चर करना चाहिए, उस सामर्थ्य को हमने पहचानना चाहिए। और मैं मानता हूं बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे पुरुषार्थ से 14 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए, अब बधाई के पात्र हैं। लेकिन 41% लोग पैसे जमा कराएं, वो मैं समझता हूं हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण है। हमारी नई योजनाओं के लिए वो हमारे लिए एक लैंडमार्क बन सकता है। और मैं आशा करूंगा कि आने वाले दिनों में ये बात ठीक है कि 5-50 क्लाइंट के साथ बड़ा काम करना सरल रहता है, और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तभी सिखाया जाता है कि जो सरल एग्जाम्पल है वो पहले सॉल्व करो। तो उसी से हम पले बड़े हैं, इसलिए कठिन एग्जाम्पल की तरफ कोई जाएगा नहीं। लेकिन अब सोच बदलने की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता है कि हम इस बड़े मास को कैसे अपने में समेटें, हमारी विकास यात्रा का वो हिस्सा कैसे बने, उसके लिए हमारा रोड मैप क्या हो। अब मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति जिसका बैंक खाता खुला है वो ऑपरेशनल कैसे हो। सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं ऐसी हैं कि जो
बैंक के रूट से ही आगे बढ़ने वाली है। बैंक के रूट से आगे बढ़ने के सरकार ने अपने, जैसे अभी हमने गैस सिलेंडर कर लिया और करीब करीब 8,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर करने की व्यवस्था बन गई। और इसके कारण जो लीकेज रुका है हमारे देश में, भ्रष्टाचार करने के बाद क्या करें, इसके लिए बहस बहुत हुई है। लोकपाल बनाओ, डिकना बनाओ, कानून, सब कुछ, वो भी गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन करने के बाद न हो इसलिए क्या, ये योजना है जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की व्यवस्था, और 8,000 करोड़। मैं बताता हूं जी, मैं आंकड़ा अभी बताता नहीं हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल पंडित जरा निकाले कि कितनी एक्स्ट्रा सब्सिडी जाती थी, जिसमें सिलेंडर भी नहीं होता था, सिलेंडर लेने वाला भी नहीं होता था, लेकिन चेक फटता था। अब इस व्यवस्था से यानी ट्रांसपेरेंसी भी लाई जा सकती है। बैंकिंग व्यवस्था से इतना बड़ा रिफॉर्म हो सकता है, वो शायद हमारे यहां सोचा नहीं गया था, आज हो रहा है। और उस अर्थ में बैंक के लोगों के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि देश में ट्रांसपेरेंसी लाने में बहुत बड़ी भूमिका आज बैंकिंग सेक्टर करना शुरू किया है। ये भी हमें एक नया विश्वास पैदा करता है हमारे में, एक नई आशा को जन्म देता है। कुछ बातें ऐसी हैं कि आपने देखा होगा कि आपके बैंक में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 जितने भी लोग होंगे, उनको खुश रखने के लिए आपको कितनी मेहनत पड़ती है। हर काम की तारीफ करनी पड़ती है हर बार, लेकिन आपका नंबर 2, आपका नंबर 3, आपका नंबर 2, आपका नंबर 3, नंबर 4, उसको दौड़ाने के लिए आपका पसीना छूट जाता है। उस गरीब को दौड़ाने के लिए सिर्फ 2 शब्द काफी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जिसको हमने चौथी पादान पर रखा हुआ है, उसके डीएनए में वो कौन सी चीज है जो इतना बड़ा परिणाम देती है, आपके लिए रिस्क लेती है, रात भर सोता नहीं है। जो वो आपके लिए करता है वही वो देश के लिए भी कर सकता है। ये गरीब जो है उसको थोड़ा सहारा चाहिए। जो आपके व्यक्तिगत जीवन में परिणाम देता है वही गरीब राष्ट्र जीवन में भी परिणाम दे सकता है। जब तक इंटेलेक्चुअली हम इस चीज को कन्विंस नहीं होंगे, जब तक ये हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं बनेगा और हमारी रोजमर्रा की घटनाओं को मैं जिस नजरिए से कह रहा हूं उस नजरिए से नहीं देखें, तब तक इंक्लूजन एक प्रोग्राम बनेगा, इंक्लूजन स्वभाव नहीं बनेगा। मुझे इंक्लूजन प्रोग्राम नहीं, इंक्लूजन स्वभाव बनाना है। और एक बार आप सोचिए, फिर आपका आनंद कुछ और होगा। आपने देखा होगा जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसे देते हैं जो बैंक, आप उनके किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, 100 लोगों का सर्वे करा लीजिए, वो आपको बताएंगे कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं गरीब से गरीब है, लेकिन अगर उसको बुधवार को 100 रुपया वापस करना है तो मंगल को आकर के दरवाजे खटखटाती हैं कि मेरे 100 रुपया ले लो। आप देखिए इतनी बड़ी ताकत है। इस ताकत को राष्ट्र के विकास में हम कैसे जोड़ें। मुझे विश्वास है कि अब जो माहौल बना है और वो परिणाम बहुत बड़ा देंगे। अभी हम जो मुद्रा बैंक का कंसेप्ट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं आगे वो एक मोबाइल बैंकिंग का ही रूप में एक इवॉल्व हो जाए। इस देश में करीब 5.25 करोड़ से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। और आज फाइनेंस की जो स्थिति देखें तो एवरेज इन लोगों का 17,000 रुपीज से ज्यादा कर्ज नहीं है, ओनली 17,000 रुपीज।
ओनली 17,000 रुपीज के कर्ज से वो किस प्रकार से इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर ये 5-6 करोड़ लोग हैं, जो कोई सब्जी बेचता होगा, दूध बेचता होगा, अखबार बेचता होगा, छोटे लोग हैं, उनको क्या चाहिए? 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 रुपया, उसको कुछ नया करने की ताकत आएगी। सुबह अखबार बेचता है, अगर 2,000 रुपया है तो दोपहर को गुब्बारे बेचने जाएगा, तो शाम को बर्फ की लहरी चला लेगा। वो अपना दिन भर में 4 प्रकार के काम करके अपनी इनकम को 2,000 से 20,000 तक ले जाएगा और देश की इकोनॉमी को ड्राइव कर देगा और 6 लोगों को रोजगार देने की उसकी ताकत होगी। क्या हम उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं? क्या हमारा किसान आत्महत्या करता है, ये दर्द सिर्फ अखबारों के पन्नों पर और टीवी की स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए। ये हमारा किसान जब मरता है, क्या बैंकिंग सेक्टर के हृदय को हिला देता है? साहूकार से पैसे लेने के कारण कभी कभी उसको मरने की नौबत आती है। 60 साल के बाद आज 80 साल हम मना रहे हैं आरबीआई के, तब क्या हमारे दिल में ये आवाज उठ सकती है कि भाई हम हमारी बैंकिंग व्यवस्था के हाथ पर इतने पसारेंगे कि कभी किसान को कर्ज के कारण कम से कम आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी? क्या ये सपना हमारा नहीं हो सकता है? मैं नहीं मानता हूं कि इसके कारण कोई बैंक डूब जाएगी। हम कभी ये तो सोचते हैं कि कोई कंपनी हमारे पास आए और वो कहे कि भाई हमारा जो फैक्ट्री है, हम उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, कार्बन एमिशन कम करने वाली लाने वाले हैं, हमें बैंक से इतना पैसा चाहिए। हम खुशी से देते हैं कि नहीं देते हैं? हमारे ब्रोचर में भी छापते हैं कि हमने कार्बन एमिशन कम करने वाले इनिशिएटिव्स को इतना इतना बैंकिंग किया, बड़ा गर्व करते हैं। लेकिन कोई किसान आकर के ये कहे कि मुझे 50 पेड़ लगाने हैं, मुझे बैंक की लोन दो, मुझे बताइए कार्बन एमिशन के लिए ये बहुत बड़े से बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? लेकिन मुझे मेरे तराजू में वो तो है, लेकिन ये नहीं है। क्या हमारा बैंकिंग सेक्टर, आप देखिए हम टिम्बर इंपोर्ट करते हैं, किसान मर रहा है। अगर हम एक इनिशिएटिव ले, एक नई योजना बना सकते हैं कि हमारे देश में जो मार्जिनल फार्मर है उसकी ज्यादा जमीन, एक खेत और 2 खेत को डिमार्केशन में जो जगह जाती है उसमें वो बाड़ लगा देता है, और इतना वेस्टेज है। भारत जैसे देश को ये जमीन बर्बाद होने की चिंता करने की आवश्यकता है, उसी दिशा में कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर हम बैंकिंग के द्वारा इनिशिएटिव ले कि भाई जो डिमार्केशन का तुम्हारा बॉर्डर है वहां अगर तुम पेड़ लगाते हो तो हम तुम्हें इतना फाइनेंस करेंगे और ये पेड़ तुम्हारी मालिकी का बनेगा, आगे चल करके हमारी ये पार्टनरशिप होगी, तुम्हारी बेटी की शादी होगी और 4 पेड़ काटने होंगे, टिम्बर के रूप में बेचना होगा, तो बैंक को इतना पैसा देना था, तुम इतना मुझे बताइए तैयार होगा कि नहीं होगा? हम कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट की दिशा में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? और जिस किसान की फसल तो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन पेड़ खड़ा होगा तो उसको लगेगा अभी तो मेरी कोई छाया है, मैं जिंदगी में मरने की जरूरत नहीं है, ये पेड़ के सहारे मैं फिर से एक बार नई जिंदगी खड़ी कर दूंगा। विश्वास पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें समाज के भिन्न भिन्न तबके और बड़े क्रिएटिव माइंड के साथ हम किस प्रकार से फाइनेंसिंग की व्यवस्था करें जिसके कारण उसको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए वो फायदा कर सके। हम उस नए तरीकों को कैसे सोचे। जिस प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन में इमीडिएटली हमारे देश में 2 चीजों पर हमारा ध्यान जाता है। एक, आर्थिक लेयर, इनकम के आधार पर या स्थिति रहन सहन के आधार पर। दूसरा, सामाजिक ताने बाने, जाति प्रथा का थोड़ा प्रभाव रहता है। लेकिन इंक्लूजन में एक नए पेरीमीटर की ओर देखने की जरूरत है, और वो है ज्योग्राफिकल इंक्लूजन। आज भी देश में देखिए हमारी इकोनॉमी को, और ये हम सबने सोचना चाहिए।
गोवा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, देश का पश्चिमी छोर, वहां तो आर्थिक गतिविधि दिखती है, लेकिन जो देश का पूरब का छोर, जिसके पास सर्वाधिक प्राकृतिक संपदा है, वहां आर्थिक गतिविधि नहीं है। हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के मॉडल में मैं देश के पश्चिमी छोर पर तो आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए मेरी बैंकिंग व्यवस्था सबसे ज्यादा काम कर रही है, लेकिन पूरब का इलाका जहां पर इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा पड़ी हुई है, जहां पर इतना सामर्थ्यवान मनुष्य बल है, मैं उसके विकास के लिए क्या करूंगा? इसलिए हमारे ज्योग्राफिकली भी मैपिंग करने की आवश्यकता है कि वो कौन से इलाके हैं कि जिसमें पोटेंशियल है, लेकिन हमारी रीच नहीं है। हमारे इंक्लूजन में जिस प्रकार से समाज के भिन्न भिन्न तबकों की ओर देखने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से भारत के भिन्न भिन्न भूभाग की ओर भी देखने की आवश्यकता है कि वो कौन सा भूभाग है कि जिसमें सामर्थ्य है लेकिन अवसर पैदा नहीं हुआ है। हम और विकास करना है तो हमने उसकी परंपरागत ताकत को सबसे पहले पहचानना पड़ता है। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था में डिस्ट्रिक्ट को अगर एक ब्लॉक माने तो हमारे पास मैपिंग है क्या कि भाई वहां का पोटेंशियल ये है, अनटैप पोटेंशियल इतना है, टैप करना है तो दिजारदा। और सरकार और बैंकिंग व्यवस्था करके सोचे कि भाई आप रॉ मटेरियल के लिए कोई डिसीजन ले लीजिए, आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कोई डिसीजन ले लीजिए, आप मैनेजर स्किल के लिए कोई डिसीजन ले लीजिए, आप वहां पर एनर्जी सप्लाई करने के लिए कर लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर लीजिए। बैंक्स आर रेडी, हम इस यहां के नक्शे को बदल देंगे। इंक्लूजन में हमने हमारे देश के विकसित इलाके, विकास की संभावना वाले इलाके, विकास से वंचित रह गए इलाके, इनके सारे पैरामीटर बना करके हमारे इंक्लूजन के मॉडल में हम इसको कैसे प्रस्तावित करें। मैं समझता हूं अगर ये हम करेंगे तो भारत को दुनिया में आर्थिक ताकत की ओर बढ़ना है। 3 साल का बच्चा 6 साल का होता है तो उसकी ऊंचाई बढ़ने में फर्क तुरंत नजर आता है कि पहले वो 2 फुट का था, अभी 4 फुट का हो गया। लेकिन 20 साल वाले को 4 साल के बाद भी 2 इंच बढ़ाना तो मुश्किल हो जाता है। आप जहां बढ़ चुके हैं बढ़ने की गति धीरी रहेगी, लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां थोड़ा सा डालने से बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो एक नए कॉन्फिडेंस को जन्म देगा। और आज विश्व में भारत के नेक्स्ट 10 ईयर के ग्रोथ रेट की जो चर्चा हो रही है, उसका पोटेंशियल एरिया कौन सा? यही है। हिंदुस्तान की सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन करने की जगह अगर कहीं है तो हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है। हिंदुस्तान के माइंस और मिनरल में जो अभी हमने डिसीजन लिए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान के सबसे धनी राज्य बनने की संभावना, जिनके पास कोयला था वो राज्य बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, ये राज्य एक नई ताकत के साथ उभरने वाले हैं। क्या हम बैंकिंग सेक्टर के लोगों को ध्यान है कि भाई इतना बड़ा वहां कल्पना बाहर का एकदम से जंप आया है, हम बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा वहां कैसे बदलाव लाए? अगर हम इस बात को करेंगे, मैं मानता हूं परिणाम बहुत बड़ा होगा। एक और क्षेत्र है जिसको भी मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं, जिसका संबंध न आर्थिक स्थिति से है, न सामाजिक स्थिति से है, और न ही इसका संबंध भौगोलिक परिस्थिति से है, और वो है नॉलेज में हम फाइनेंशियल पार्टनरशिप कैसे बने। हमारे देश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। ये 35 से नीचे का जो पॉपुलेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसे या तो स्किल चाहिए या नॉलेज चाहिए। आज जो वर्तमान इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे उसको जो प्राप्त होता है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने के लिए कुछ कमी महसूस होती है।
हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नॉलेज इंस्टीट्यूशंस लाते हैं तो हमारे देश के नौजवान के लिए वहां पढ़ना कठिन है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। क्या बैंक एक ऐसा मीडिएटर बन सकती है कि कितनी फी वाली इंस्टीट्यूशन क्यों न हो, गरीब का बच्चा भी वहां पढ़ने जाएगा। हम खड़े हैं, हम ज्ञान उपार्जन के प्रयास में कभी पीछे नहीं हटेंगे। गरीब का बच्चा भी कितनी ही धन खर्च करके अगर पढ़ाई करने की ताकत रखता है, हम पूरी तरह, मैं समझता हूं लंबे समय के लिए बेनिफिट करने वाला ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और इसलिए हम हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्टूडेंट्स, उनका अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का इरादा, और उसको अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ताकत जितनी ज्यादा होगी, देश को आने वाली शताब्दी में अपना नेतृत्व करने की ताकत आएगी। हमारी इमारतें कितनी अच्छी बनी हैं, इससे दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली है हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के पास कितना सामर्थ्य है, कितना ताकत है इनके अंदर। वो ताकत का आधार दंड बैठक से नहीं आता है। उस ताकत के लिए उसको ये शिक्षा का अवसर होना चाहिए। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास बनाता है, बैंक मदद करे। स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाना चाहता है, बैंक मदद करे। और मैं विश्वास दिलाता हूं जी, अब तक का जो आपका एनपीए का अनुभव है, इसमें कभी ऐसा कटु अनुभव नहीं आएगा, मुझ पे भरोसा कीजिए। देश का नौजवान पाई पाई लौटाएगा, लेकिन देश बहुत आगे बढ़ेगा। और इसलिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सब्जी बेचने वाले से लेकर के एक टॉप क्लास हाई क्वालिफाइड मैन पावर तैयार करने तक पूरा चेन कैसे बनाएं, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। और एक विषय मेरे मन में है, मेक इन इंडिया। मैं मेक इन इंडिया के विस्तार में और बातें नहीं करना चाहता, मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन शायद सोचा जाए। हम आज आरबीआई के 80 साल मना रहे हैं। आज हम संकल्प कर सकते हैं क्या कि फलानी तारीख को जो हमारी करेंसी छपेगी, उस करेंसी का कागज भी इंडियन होगा और इंक भी इंडियन होगी। ऐसा नहीं चल सकता। जिस गांधी ने स्वदेशी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, वो विदेशी कागज पे उसकी तस्वीर छपती रहे, क्या शोभा देता है? क्या मेरे देश के पास ऐसे उद्योगकार नहीं है क्या? उनको कंपल किया जाए कि तुम्हें ये फैक्ट्री लगानी है, पैसा चाहिए दूंगा, लेकिन ये लगाओ बागल में, लाओ दुनिया से टेक्नोलॉजी लाओ। और हमारी करेंसी, हमारी नोट, कागज हिंदुस्तानी होना चाहिए, इंक भी हिंदुस्तानी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आरबीआई इस बात को एक जिम्मेवारी समझ करके एक नेतृत्व दे। ये बदलाव के, ये मेक इन इंडिया तो यहीं से शुरू होता है जी। मैं मानता हूं कि हम इन चीजों को कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि देश आज जहां पहुंचा है उसमें आप सबका बहुत योगदान है, इन इंस्टीट्यूशंस का योगदान है। और मैं उस व्यक्ति इंसान हूं, मैं मानता हूं कि आइडिया कितने ही होनहार क्यों ना हो, अगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ताकतवर नहीं है तो सारे विचार वांझ रह जाते हैं। और इसलिए इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो, आरबीआई की गरिमा और कैसे बढ़े, बैंकिंग सेक्टर की अपनी गरिमा कैसे बढ़े, सभी संस्थाएं अपने आप में ताकतवर कैसे बने। जितना संस्थाओं का नेटवर्क ताकतवर होगा, स्वतंत्र रूप से निर्णय करने का होगा, अल्टीमेटली देश का लाभ होने वाला है। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार देश चलना चाहिए। देश आपने जिन वैल्यूज को स्वीकार किया है, उन वैल्यूज के लिए अगर चलेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। और उस बात को हमको लेकर के चलना चाहिए। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया। देखिए, देश की ताकत देख कीजिए। कभी कभी हम अपने देशवासियों को कुछ भी कह देते हैं, मेरा अनुभव अलग है जी। हमने ऐसे ही कानों कानों में एक बात शुरू की थी
कि भाई जो लोग एफोर्ड करते हैं, इन लोगों ने गैस सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। अब जो लेते थे वो कोई सरकार को 500 रुपया नहीं मिलते तो कोई भूखे नहीं रहने वाले, लेकिन ध्यान नहीं था। ऐसे चलता है यार, ध्यान नहीं था। सहज रूप से हमने बातें बातें में कहा, मैंने कहीं पब्लिकली नहीं कहा था, और मैं हैरान था, मैं सचमुच में हैरान था। 2 लाख लोगों ने वॉलेंटरीली अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी। कानों कानों पे बात पहुंची। ये देख करके मेरा विश्वास बढ़ा, तो मैंने अभी ऑफिशियली पिछले हफ्ते लॉन्च किया कि भाई जो एफोर्ड करते हैं उन्होंने गैस सब्सिडी को सरेंडर करना चाहिए। और सरकार का इरादा सब्सिडी बचा करके तिजोरी भरना नहीं है। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात जब करता हूं तब आप जिस गैस सिलेंडर को छोड़ें वो उस गरीब के घर में सिलेंडर जाए ताकि उस महिला को लकड़ी जला करके धुएं में अपने बच्चों को पालने की नौबत ना आए। मुझे बताइए, ये सेवा नहीं है क्या? मैं विश्वास करता हूं कि सभी हमारे बैंक अपने सभी कर्मचारियों को विश्वास में ले, बैंक एक बैंक रिजॉल्व करे कि हमारे बैंक के 20,000 कर्मचारी हैं, हम सब्सिडी छोड़ देंगे। सारे इंडस्ट्रियल हाउस डिसाइड करें कि हमारे इंडस्ट्रियल हाउस में 5,000 एम्प्लॉई है, हम सब्सिडी छोड़ देंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडस्ट्री उनको पैसे दे, ये मैं नहीं चाहता। वॉलेंटरी देना यानी देना, हर एक व्यक्ति का। अगर हिंदुस्तान में हम 1 करोड़ लोग ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दें, इतनी ताकत रखते हैं, 1 करोड़ गरीब परिवारों में जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, जिसके कारण जंगल कटते हैं, जिसके कारण कार्बन एमिशन होता है, जिसके कारण गरीब के बच्चे को धुएं में पलना पड़ता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हर छोटी चीज में संभव होता है। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने विजन से यह संभव होता है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत आभारी हूं। मैंने काफी समय ले लिया, लेकिन मुझे विश्वास है, मैंने पहले ही कहा था, मेरा ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं इस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन मैं जिस बिरादरी में पैदा हुआ, गरीबी मैंने देखी है, और गरीब की गरीबी से बाहर निकलने की ताकत है। थोड़े हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करने की ताकत बैंकिंग सेक्टर के पास है। आइए हम सब मिलकर के देश को गरीबी से मुक्त कराने का अभियान को, फाइनेंशियल इंक्लूजन के इस मिशन के साथ आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, भावनाओं और संवेदनाओं से भरे हुए आपके संबोधन के लिए। आज के इस स्मरणीय और ऐतिहासिक दिन की मधुर स्मृति के रूप में हम माननीय प्रधानमंत्री जी और गणमान्य अतिथियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। ये स्मृति चिन्ह श्रेडेड नोट से बने हैं माननीय, और इसमें महत्वपूर्ण दांडी मार्च को दर्शाया गया है। दांडी यात्रा को नोट की कतरनों से बनाया गया है। हम गवर्नर आरबीआई डॉक्टर रघुराम राजन से अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। आपसे ही निवेदन है डॉक्टर रघुराम राजन की कृपया माननीय
गवर्नर महाराष्ट्र श्री सी विद्यासागर राव को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। गवर्नर आरबीआई अब माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। डॉक्टर रघुराम राजन, आपसे ही अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये स्मृति चिन्ह हम आपको बता दें कि ये स्मृति चिन्ह गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज एग्मोर चेन्नई के स्टूडेंट्स ने बनाया है और ये नोट की कतरनों से बना है। अब हमारा निवेदन है डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री एस मुंदड़ा से कि कृपया आभार प्रकट करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सहित मंच पर आसीन सभी सम्मानीय गण, आमंत्रित अतिथिगण और रिजर्व बैंक के मेरे साथियों, रिजर्व बैंक की जो इतिहास है वो कई मायनों में भारत के आर्थिक जगत का इतिहास भी है और इस इतिहास में वित्तीय समावेशन एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक जगत में चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश पर नज़र डालें तो पिछले 6 माहों में जो हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मेरा आशय आप समझ गए होंगे, मेरा आशय है प्रधानमंत्री जनधन योजना की ओर। हमारे देश में लगभग 25 करोड़ हाउस होल्ड हैं और इस योजना के पूर्व इसमें आधे से ज़्यादा हाउस होल्ड जो हैं वो एक मूलभूत जो बैंक अकाउंट होता है ऐसी भी एक सुविधा से वंचित थे। इस मुहिम के तहत 6 महीने से कम समय में 13 करोड़ के लगभग हाउस होल्ड के अकाउंट खोले गए और फलस्वरूप आज स्थिति यह है कि देश के 99.99% हाउस होल्ड बैंकिंग सुविधा के अंदर आ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस चमत्कार के प्रेरणा पुरुष आप रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर हमारे देश में एक हनुमान की तरह था जिसे अपनी शक्ति का भान नहीं था। आपने उस हनुमान को उसकी सुप्त शक्ति का भान कराया, उसे ऊर्जा मंत्र दिया और ये जो समावेशन का समुद्र है ये इस कम्युनिटी ने लांघ दिया। महोदय, रिजर्व बैंक की स्थापना के 80 वर्ष और वित्तीय समावेशन के इस समागम में आपने हमारे आग्रह को स्वीकारा और आप यहाँ पधारे। इससे इस कार्यक्रम का अर्थ और महत्ता दोनों बहुत बढ़ गए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। 2 बातें और, आपने अपने उद्बोधन में कई पड़ाव दिए, कई आयाम दिए और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो पूरी कम्युनिटी है जिसने समुद्र लांघा है ये आगे लंका विजय भी अवश्य करेगी। एक और जानकारी देना चाहूँगा जो आपने उल्लेख किया, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक नोट बनाने की फैक्ट्री का प्रयत्न शुरू कर दिया गया था। ये फैक्ट्री काफ़ी एडवांस स्टेज में आ गई है और हमें विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में बैंक नोट का उत्पादन रिजर्व बैंक की फैक्ट्री से होने लगेगा। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आप हमेशा हमारे शुभचिंतक, मार्गदर्शक व संभल रहे हैं। आपने इस अवसर को गरिमा दी व अपना प्रेरणादायक संदेश दिया, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुंबई में देश की आर्थिक राजधानी में हम आपकी छत्र छाया में रहते हैं और आपने हमेशा हमें सद्भावना और सहयोग दिया है। आप समय निकाल कर यहाँ आए, हम आपके भी अत्यंत आभारी हैं। हमारे भूतपूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी, रिजर्व बैंक सेंट्रल बोर्ड के सभी सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, बैंकर्स
उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधि व सभी आमंत्रित अतिथिगण, आपकी उपस्थिति ने इस समारोह को संवारा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को भी हमारा धन्यवाद। इस समारोह का सुचारू संपादन प्रशासन के साथियों, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों व एनसीपीए मैनेजमेंट सहित कई एजेंसीज के सहयोग के बिना संभव नहीं था। उन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अंत में कार्यक्रम की संचालिका सुश्री मनीषा और रिजर्व बैंक के उन सारे साथियों का जो पिछले कई दिनों से अथक प्रयत्न कर रहे थे कि कार्यक्रम की सफलता के लिए, उन सबको मेरा धन्यवाद। अंत में आप सबको पुनः एक बार आभार। धन्यवाद श्री एस मुंदड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपने इस समारोह में सम्मिलित होकर हमारा उत्साहवर्धन किया। सभी गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय गवर्नर, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। और आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक और सुरक्षा व्यवस्था की वजह से आप लोग कृपया अभी अपने ही स्थान पर रहें, अपने स्थान से कहीं नहीं जाएं। सभी जो यहाँ पर पधारे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बैठेंगे तो आपसे मैं बात करूं। लंच 12:30 बजे से ओपन होगा। हमारे वॉलंटियर्स आपको गाइड करेंगे लंच तक, परंतु सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर